Law of demand. Definitions. Law of demand states that people will buy more at low prices and buy less at high prices. Other thing remaining the same is called law of demand, or other things remaining the same. The quantity demand increases with every fall in the price and decreases with every rise in the price. Or the law of demand in fact shows the negative relation between price and quantity demanded. It can be explained with the help of schedule and diagram. Schedule. First column price, second column demand. Explanations. According to this schedule, first column shows price and second column show quantity demand. When price is 2, then quantity is 40. When price increase from 2 to 4, then demand decreases from 20 to 30. It is shown in the diagram. Okay, OX quantity, OY measured price, quantity 10, 20, 30, 40, 50, price 2, 4, 6, 8, 10. Okay, when price 2, then quantity 20. When price 4, quantity 30. Price 6, quantity 20, or price 8, quantity 10. By joining these points, demand curve A, B, C, D. Explanations. According to this diagram, with the price increases, demand is decreases. By joining these points A, B, C, D is demand curve. Assumptions. Following assumptions are as under. Number 1, homogeneous units. It is assumed that unit of a good are same because if the quantity of the lateral units purchased are superior, then with an increase in price, demand may not contract. Number 2, no change in income. It is assumed that the income of the consumer should remain constant because the change in income of the consumer may also affect the demand of commodity. Number 3, no change in population. It is assumed that population should remain constant as the demand of a commodity may change with the change in size of population. Number 4, no change in buyer taste. In the law of demand, that the buyer taste should remain constant as the change in taste may also affect the demand positively and negatively. Number 5, no change in fashion. In the law of demand, it is assumed that there should be no change in fashions. Number 6, no change in price of substitutes. It is assumed that price of substitutes should remain constant as it may affect the demand. Number 7, no change in quantity of money. In the law of demand, it is assumed that quantity of money should remain constant. Number 8, no change in law or orders. It is assumed that there should be no change in law and order situations. Number 9, climates or weather conditions. Law does not hold when weather changes. In summer seasons, demand for ice increase, although price higher, and in winter seasons, even at a low price does not bring rise the demand.
limitations. Following limitations are as under. Number 1, given goods. The law of demand is not applicable for given goods because the demand for given goods decreases as their price decreases, as in these situations people can have choice to use better things. Number 2, life-saving drugs. Law does not apply for the consumption of life-saving drugs. Necessity of life. If the price of one, the necessity of life, rises, the expenditures on other goods decreases without increase in their prices. Number 4, very high price product. It is also observed that law of demand is not applicable on very high priced product because the demand of those product does not change as their prices change. Number 5, act. The law of demand is not applicable in case of act shortage of commodities or due to situations of war which disturbs peace and security. In such a situation people buy more even if the prices increases. Number 6, superior goods. If a commodity is superior, a rise in price will bring further rise in demand. लॉ ऑफ डिमांड. तारीफ. दीगर अमवार बदस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत कम होती है तो इसकी तलब बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर इसकी तलब कम हो जाती है. यहाँ दीगर अमवार से मुराद वो अवामल है जो कीमत के अलावा तलब में तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन कानून तलब बयान करते वक्त ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि इन अवामल में कोई तब्दीली नहीं होती. होमोजीनियस यूनिट्स. तमाम इकाइयाँ यकसा नोयत की हों. कानून तलब के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि ख़रीदार की जाने वाली शय की तमाम इकाइयाँ यकसा किस्म की हो, क्योंकि अगर बाद में ख़रीदी जाने वाली इकाई बेहतर किस्म की होगी तो इनकी कीमत ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी इनकी तलब कम नहीं होगी, और अगर बाद में ख़रीदी जाने वाली इकाई घटिया किस्म की हो तो कीमत कम होने के बावजूद भी इनकी तलब में इजाफ़ा नहीं होगा. इस तरह से इन दोनों सूरतों में कानून साबित नहीं होगा. नंबर 2, सार्फिन की आमदनी ना बदले. इस कानून के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि सार्फिन की आमदनी में भी कोई तब्दीली ना आए, क्योंकि अगर सार्फिन की आमदनी बढ़ जाए तो वह पहली कीमत पर ही अशिया की तलब में इजाफ़ा कर देते हैं, और अगर इनकी कीमत कम हो जाए तो वह तलब में कमी कर देते हैं. इन दोनों सूरतों में कानून गलत साबित होता है. नंबर 3, आबादी में तब्दीली ना आए. कानून तलब इस वक्त दुरुस्त साबित होगा जब मुल्क की आबादी में कोई कमी बेशी ना हो, क्योंकि अगर आबादी में इजाफ़ा हो जाता है तो मौजूदा कीमत पर ही बाज़ अशिया की तलब पहले से ज़्यादा हो जाएगी. नंबर 4, सार्फिन की पसंद ना बदले. सार्फिन की पसंद, आदत और फैशन वगैरह में तब्दीली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग किसी शय को पहले से ज़्यादा पसंद करने लगें या इस शय का इस्तेमाल फ़ैशन में शामिल हो जाए तो इस शय की कीमत में इजाफे के बावजूद इसकी तलब कम नहीं होगी, और अगर किसी शय का फ़ैशन ना रहे तो इसकी कीमत में कमी के बावजूद इसकी तलब नहीं बढ़ेगी, और यूँ ये कानून दुरुस्त साबित नहीं होगा. नंबर 5, नो चेंज इन फैशन. कानून का दुरुस्त होने के लिए ये भी लाजमी है कि फ़ैशन में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए. नंबर 6, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. मतबादल अशिया की कीमतें ना बदले. ये कानून इस सूरत में दुरुस्त साबित होता है कि जब किसी शय की मतबादल अशिया की कीमतों में तब्दीली ना हो. मसलन अगर चाय की कीमत में कमी हो जाए तो इसकी तलब इस सूरत में बढ़ेगी अगर काफ़ी की कीमत तब्दील ना हो, लेकिन अगर काफ़ी की कीमत भी कम हो जाए तो फिर चाय की तलब में इजाफ़ा नहीं होगा और यूँ कानून गलत हो जाएगा. नंबर 7, मुल्की करेंसी की कदर में तब्दीली का अमकान ना हो. अगर मुल्की करेंसी की कदर में कमी होने का अमकान हो तो लोग अशिया की तलब में कमी नहीं करेंगे, ख्वाह कीमत में इजाफ़ा ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि ज़र की कदर में कमी के बाद कीमतों में मज़ीद इजाफ़े का मकाम होता है. इसके बरक्स अगर मुल्की करेंसी की कदर में इजाफ़े का अमकान मौजूद हो तो लोग अशिया की मांग कम कर देते हैं, क्योंकि ज़र की कदर में इजाफ़े की वजह से कीमतों में मज़ीद कमी वाक़या होती है. लिहाजा दोनों सूरतों में कानून दुरुस्त साबित नहीं होता.
लिमिटेशन। नंबर 1, घटिया अशिया। ऐसी अशिया जिन्हें घटिया समझा जाता है, मसलन गंदम के मुकाबले में बाजरा या गोश्त के मुकाबले में दालें वगैरह। ऐसी अशिया की कीमत कम होने पर तलब बढ़ने की बजाय मज़ीद कम हो जाती है। ऐसी अशिया के बारे में कानून तलब दुरुस्त साबित नहीं होता। नंबर 3, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी। ऐसी अशिया जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल होती हैं और जिनका इस्तेमाल कम करना मुमकिन नहीं होता। ऐसी अशिया की कीमत बढ़ने पर तलब कम नहीं होती, लिहाजा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर भी इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। नंबर 4, वेरी हाई प्राइस प्रोडक्ट। ऐसी अशिया जिन्हें इस्तेमाल करके लोग अपने आप को दूसरों से आला और बरतर महसूस करते हैं, मसलन पिजारो, गाड़ी, बंगला वगैरह। इन अशिया की कीमत में इजाफे की सूरत में इनकी तलब कम होने की बजाय बढ़ जाती है, लिहाजा बाइस इम्तियाज़ अशिया पर किसी किस्म का कानून इतलाक़ नहीं होता। नंबर 6, सुपीरियर गुड्स या नायाब अशिया। ऐसी अशिया जो मौजूदा वक़्त में तो मंडी में मुहैया हो लेकिन मुस्तक़बिल करीब में ख़दशा हो कि नहीं मिलेंगी, या जो बहुत आला किस्म की चीज़ें हैं, इनकी कीमत बढ़ने पर भी तलब कम नहीं होती, लिहाजा इस किस्म की चीज़ों पर भी किसी किस्म का कानून इतलाक़ नहीं होता।